Hello students, welcome to my channel. Today we will discuss the topic basic of genetic engineering and bioprocess engineering. So in our last video also we have discussed the modern view and the conventional view of biotechnology, the definition of biotechnology and also the definition given by European Federation, that is the combination of both the modern and the conventional view. Now the basic of the genetic engineering and bioprocess engineering. So the genetic engineering, also known as RDT. RDT means recombinant DNA technology. So what are the engineers? Engineers means which manipulate. मैनिपुलेट मीन्स कि जो क्या करते हैं, चेंज करते हैं. तो अगर वो चेंज करें जेनेटिक मटेरियल में, then it is known as the rDNA technology. Now what is the genetic material? The genetic material that is DNA or RNA. Full form of DNA, deoxyribonucleic acid and ribonucleic acid. So in most of the organisms we can say the more than 99% organisms have the genetic material and that genetic material is DNA. मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जो 99% से भी ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स होंगे उनमें DNA is the genetic material and only in the 1%, less than 1% have the RNA genetic material. Okay, and mostly the sole member in which the RNA is the genetic material, that are the viruses. And viruses are not in between the category of living and non-living. वो जो है living और non-living की category में आते हैं, वो prokaryotes में भी नहीं आते. So the viruses have the RNA genetic material. So why this DNA, only the DNA is the genetic material? We have discussed this topic in chapter 5th, chapter 6, the molecular basis of inheritance, that why DNA is more stable than the RNA. First thing is, in case of the DNA, at the second position there is the deoxyribose sugar is present. Deoxy means the oxygen is removed from the second position and this oxygen provide the reactivity to the DNA, but if it is not present then it become less reactive. The second thing, in case of RNA, at the place of thymine uracil is there. So thymine, that is also stable, but uracil, that is more reactive. So there are so many points which prove that the DNA is the genetic material and it is also the more stable. So what we are doing in genetic engineering, we are recombining. Recombinant means recombine. So what is the meaning of recombine? Recombine का meaning क्या होता है? हम जब क्रोमोसोम्स को दोबारा से कंबाइन करें, डीएनए को दोबारा से कंबाइन करें, दो ऑर्गेनिजम्स का डीएनए लें और उसको कंबाइन करें, दैट इज नोन एज द रिकम्बिनेंट. और हम डीएनए को कंबाइन कर रहे हैं, सो इट इज नोन एज द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज आरडीएनए टेक्नोलॉजी. फर्स्टली, suppose I have taken the DNA from the cell of pancreas. जो ह्यूमन बींग्स की जो पेनक्रियाज से सेल ली मैंने और उसमें से मैंने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया. सो दैट इज द डीएनए ऑफ इंटरेस्ट. और इस डीएनए को अब मैं क्या करूँगी, ब्रेक करूँगी. व्हेन दिस डीएनए इज ब्रेक और the gene of interest, suppose this gene is there and this gene is known as the insulin making gene. Which gene is there? Insulin making gene. So firstly there is the use of the restriction enzyme. Restriction enzymes are
ऑल्सो नॉन एज द मोलिकुलर सीजर्स। मोलिकुलर सीजर्स मीन्स कि वो डीएनए को कट करेंगे, एंड दे आर लाइक द सीजर, एंड फर्स्टली दे आइडेंटिफाई द सम स्पेसिफिक सीक्वेंस and then they cut the DNA from both the strand from a specific site. We will discuss the restriction enzyme topic in detail also, but here only the meaning that for breaking the DNA there is the need of the restriction enzyme. और ये restriction enzyme किसकी तरह काम करेंगे, एक molecular सीजर की तरह। सीजर का मतलब होता है कैंची, तो एक ये इसकी तरह काम करेंगे और डीएनए को क्या करेंगे, कट करेंगे। नाउ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो जीन हमने पैनक्रियाज से एक्सट्रैक्ट करके जो लिया, जो जीन क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा, उस जीन को हमने क्या किया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसको निकाल लिया। द सेकेंड थिंग, in case of the bacteria also there are the chromosome is present and the DNA is present. So there are the first that is known as the genomic DNA, it is known as the nucleoid. बैक्टीरिया में इसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। और इसके अलावा और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज प्लाज्मिड। इसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड। सो द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है, अगर हम इस प्लाज्मिड को ले लेते हैं यहाँ पे, तो इस प्लाज्मिड को भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा, उसी साइट से ब्रेक कर देगा। सपोज अगर यहाँ से हमने डीएनए को ब्रेक किया है, एक स्ट्रैंड में यहाँ पे आ रहा है AT, दूसरे स्ट्रैंड में जो जहाँ से वो ब्रेक हुआ है वहाँ आएगा TA, इसी तरह यहाँ पे भी ATTA, यहाँ से इसको ब्रेक करेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देन दिस डीएनए इज ट्रांसफर इनटू दिस वेक्टर, इस वेक्टर के अंदर हमने इसको ट्रांसफर कर दिया प्लाज्मिड के अंदर। एंड व्हेन द सेल डिवाइड, जैसे सपोज अगर हमने यहीं पे इसको इंजेक्ट कर दिया, तो जब ये सेल डिवाइड करेगी या विदाउट सेल डिवीज़न ऑल्सो, बहुत सारे जो क्या बन जाएंगे, बहुत सारे plasmids are formed, more than 2, 3, 4 plasmids are formed, and in that there is also the cloning of that gene, that insulin making gene जो था उसकी भी cloning हो जाएगी, and that process is known as the gene cloning। तो हम जो ये process करेंगे इसको हम बोलेंगे gene cloning, और फिर हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसके डीएनए में, और अब वो डीएनए क्या बना लेगा, एमआरएनए बनाएगा और फिर प्रोटीन, और फाइनली हमें क्या मिलेगा, दैट प्रोटीन इज़ नथिंग, दैट प्रोटीन इज़ द इंसुलिन। तो हमें क्या मिली है, वो हमें इंसुलिन मिला है। सो दैट इज़ नोन एज द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि हमने डीएनए को दोबारा से कंबाइन किया और अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको लिया, उसकी कॉपीज़ की, एंड दैट प्रोसेस इज़ नोन एज द जीन क्लोनिंग, और फिर उसको ट्रांसफ़र किया, देन इट इज़ नोन एज द जीन ट्रांसफ़र। सो दैट इज़ द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इट इज़ ऑल्सो मीन्स इन द ट्रेडिशनल मेथड, और जो हम मॉडर्न व्यू हम पढ़ेंगे, तो मॉडर्न व्यू में यही है, आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम यही करते हैं कि डीएनए को रिकम्बाइन हम करेंगे। ओके, आफ्टर दैट द सेकेंड इज द बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। नाउ द सेकेंड इज द बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, मीन्स टू प्रोवाइड द स्टेराइल एम्बियंस or the maintenance of sterile microbial contamination free ambience in the chemical engineering process to enable the growth of only desired microbes. So try to understand the meaning of this definition, कि इसका क्या meaning है। Suppose we are culturing some microbes, हम क्या कर रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं उनको हम कल्चर कर रहे हैं, एंड हेयर दिस इज़ द कल्चर प्लेट। तो मैंने यहाँ पे बैक्टीरिया को ग्रो किया, सम आर द ब्लैक इन कलर, सम आर द रेड इन कलर,
so like this. Okay, so that is known as the culture plate. और हमें क्या करना है, प्योर कल्चर करना है. प्योर कल्चर मीन्स when we are doing the genetic engineering और rDNA टेक्नोलॉजी, मीन्स अगर हम इनमें अप्लाई करें, इन बैक्टीरियाज के अंदर हम DNA को ट्रांसफ़र करेंगे, सो इन मोस्टली 1 to 2% DNA ही जो हैं वो 2% बैक्टीरिया ही जो हैं वो रिकॉम्बिनेंट बन पाएंगे. दूसरों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही नहीं, जो DNA है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता. in all the microbes we can't transfer the DNA और can't transfer the another genetic material. हम उसमें उनको ट्रांसफॉर्म्ड बना सकते हैं, कुछ को ही हम बना सकते हैं, सभी को हम ट्रांसफॉर्म्ड नहीं कर सकते. सिंपली भी अगर हम बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसमें भी हम एक्सपेरिमेंट्स करें तो सारे बैक्टीरियाज को हम ट्रांसफॉर्म्ड नहीं बना सकते. तो हमें क्या करना है, जैसे सपोज we want to get the antibiotics or we get the vaccines or the enzyme. तो अगर हम स्टार्टिंग से ही एक प्योर कल्चर लेके चलें, ओनली उन बैक्टीरियाज को ही ग्रो करें जो बैक्टीरिया आगे फर्दर यूज़ होंगे एंटीबायोटिक्स बनाने में, वैक्सीन बनाने में या एंजाइम बनाने में, तो फर्दर हमें उसकी प्रोसेसिंग पे अलग से जो हमें मनी नहीं लगानी पड़ेगी, कंज्यूम नहीं करना पड़ेगा, फर्दर जो इकोनॉमिकली भी हमारे ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा. फर्दर अगर हम इसको प्योर कल्चर नहीं लेते तो बाद में हमें उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, उस प्रोडक्ट को हमें प्योर बनाना पड़ता है. बट इफ़ वी आर टेकिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग देन वी कैन मेक द प्योर कल्चर एंड वी कैन मेक द प्रोडक्ट ऑफ आवर चॉइस. तो ये कल्चर प्लेट लेंगे हम, उस कल्चर प्लेट में हम जब स्ट्रिकिंग करेंगे, स्ट्रिकिंग मीन्स जैसे एक मेथड होता है बायोटेक्नोलॉजी में, जब हम इसको इस तरह से स्ट्रिकिंग करें या इस तरह से करें तो फाइनली हमें एक ऐसा एरिया मिलेगा जहाँ पे कुछ सिंगल कॉलोनी हमें बैक्टीरिया की मिलेगी. सो वी कैन सेपरेट दैट सिंगल कॉलोनी और उसके ऊपर फर्दर हम उसमें DNA को हम ट्रांसफॉर्म्ड करेंगे, उस DNA को हम ट्रांसफ़र करेंगे. तो उससे जो बैक्टीरिया बनेंगे, देयर आर द 2 टाइप ऑफ बैक्टीरिया. वन इज़ नोन एज द ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड सेकेंड आर द नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स. So this topic also come further when we will discuss the topic plasmid. तो वहाँ पे भी ये टॉपिक आएगा ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स का. तो अगर हम इसको अभी समझ लेते हैं सो दैट इट बिकम वेरी इजी. सपोज़ हमने क्या करना है, कोई भी हमारा कल्चर मीडियम लेना है हमें. जैसे मैंने यहाँ पे कल्चर मीडियम लिया. कल्चर मीडियम मीन्स द फूड फॉर द बैक्टीरिया. जैसे हमारे लिए एक प्लेट में हम सारा खाना अपना रख लें तो उसको हमारा फूड बोलेंगे. ऐसे ही कल्चर मीडिया होता है, एक टाइप का मीडियम होगा जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होंगे बैक्टीरिया के लिए, तो दैट इज़ नोन एज द कल्चर मीडिया. और उस कल्चर मीडिया के अंदर हमने कुछ बैक्टीरिया को ग्रो किया. तो जब हम उस बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे तो वहाँ पे इस कल्चर मीडियम के अंदर जो बैक्टीरिया ग्रो करेगा वो एक एंटीबायोटिक के रेसिस्टेंट है. और वो कौन सी एंटीबायोटिक के रेसिस्टेंट है, दैट इज़ नोन एज द एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट. मीन्स हमने यहाँ पे अगर एम्पिसिलिन डाल दिया इस कल्चर मीडियम में, हमने क्या डाला है, एम्पिसिलिन, तो ये बैक्टीरिया, इसके पास एक ऐसा जीन है जिसकी वजह से ये एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट है. तो ये इस कल्चर मीडियम में ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ग्रो करेगा. ओके, तो अब हम दूसरा कल्चर मीडियम लेते हैं जिसमें हमने क्या किया, एम्पिसिलिन भी डाल दिया और टेट्रासाइक्लिन. टेट्रासाइक्लिन एक एंटीबायोटिक होती है, एम्पिसिलिन भी एक एंटीबायोटिक होती है. तो हमने वहाँ पे 2 टाइप के बैक्टीरिया लिए. एक बैक्टीरिया जो है वो जो हम ये स्टार्टिंग में ही जैसे रेड कलर का हम बैक्टीरिया ले रहे हैं, सिंपली दिस,
ब्लैक कलर का बैक्टीरिया हमने लिया और इसमें हमने रेड कलर से इसके अंदर शो किया एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट। ऐसे ही हम दूसरा एक और बैक्टीरिया लेंगे और ये रेसिस्टेंट है किसके, जो एम्पिसिलिन के भी रेसिस्टेंट है ये, और साथ में टेट्रासाइक्लिन के भी। सो जब हम यहाँ पे हमने जो मीडियम लिया, अगर हम यहाँ मीडियम मीन्स यहाँ क्या डालें, टेट्रासाइक्लिन, अगर हम इस कल्चर मीडियम में टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो जो ये फर्स्ट बैक्टीरिया था ये इसमें ग्रो नहीं करेगा, तो ये बैक्टीरिया इसमें ग्रो नहीं करेगा। ओनली कौन सा बैक्टीरिया ग्रो करेगा, जो टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट होगा। और इसमें हमने एम्पिसिलिन भी डाल रखा है, अगर हम इसमें एम्पिसिलिन भी डाल दें और टेट्रासाइक्लिन भी डाल दें तो इस वजह से वो बैक्टीरिया ग्रो करेगा जो एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट भी है और टेट्रासाइक्लिन रेसिस्टेंट भी। तो इस वजह से हम इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं वो बैक्टीरिया जो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएंगे या वो बैक्टीरिया जो ट्रांसफॉर्म्ड नहीं होंगे। सो दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन डिटेल in the further topic, that is the plasmid. So now just try to understand that the sterile condition means the contamination free condition, कि अगर उसमें जो बैक्टीरिया जिनको हमने सेलेक्ट करना है सिर्फ वही बैक्टीरिया हम ग्रो करें तो फर्दर हमें प्रोसेसिंग में कोई भी जो आप बोल सकते हो कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ओके, नाउ द ट्रेडिशनल व्यू जो है और जो मॉडर्न आरडीएनए टेक्नोलॉजी है और जो ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द बोथ। नाउ वी विल डिस्कस द ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन एंड आरडीएनए टेक्नोलॉजी। सो टू अंडरस्टैंड दिस, let us take the example of asexual reproduction and sexual reproduction. So the asexual reproduction, that is known as the uniparental, because the genes, the chromosomes that are coming from the same parent and there is that organism that is morphologically and genetically similar. So there is the less variation in case of asexual reproduction. But if we take the example of sexual reproduction, in sexual reproduction more variation takes place. Why the more variation takes place? Because the chromosomes, the diploid set of chromosome, that is 46, that is the symbol for the female and that is for the male. So in the female gamete the 23 chromosomes are present, the male gamete also the 23 chromosomes are present, and when they combine there is the formation of the zygote, and in that zygote there is the recombination. In that zygote there is the recombination, and that recombination was done in the traditional hybridization. But उसमें क्या होता है, ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन में यूजफुल कैरेक्टर्स के साथ, डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स के साथ कुछ अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। बट इन केस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी ऐसा नहीं होता, हम सिर्फ जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हैं वही हमें मिलेंगे और उसी को हम आगे ट्रांसफ़र करेंगे। वी टेक द सिंपल एग्जांपल, सपोज वी वांट द मोर मिल्क गिविंग काउ। अगर हमें मोर मिल्क गिविंग काउ चाहिए तो हम क्या करेंगे, कोई एक अच्छी सी जो ब्रीड है काउ की वो सेलेक्ट करेंगे, और दूसरा जो बुल होगा वो सेलेक्ट करें हम, या अच्छी वैरायटी का जो बुल होगा उसको सेलेक्ट करें, तो हमें जो फाइनली काउ मिलेगी वो दूध ज़्यादा देगी, मिल्क। बट विद द मिल्क देयर आर द अदर कैरेक्टर्स ऑल्सो कम। सपोज वी वांट द प्योर वाइट काउ,
but after that the cow that is giving the milk, but the color that is spotted white and black, जो mixing होगी उसमें. So like that in case of sexual reproduction, the offspring, जो offspring बनेगा, नया organism बनेगा, son या जो daughter बनेगी, उसके अंदर कुछ अपने यूनिक कैरेक्टर्स होंगे, कुछ रिजेम्बलेंस जो है मदर के साथ होगी, कुछ फादर के साथ होगी, और जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स हमें चाहिए थे वो हमें नहीं मिलेंगे इन ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन. उसके साथ हमें कुछ और कैरेक्टर्स भी मिलेंगे. मीन्स देयर इज़ द ब्लेंडिंग. यहाँ पे क्या होगी? ब्लेंडिंग होगी. ओके. But in case of rDNA technology there is the no blending. Recombinant DNA technology में हम वो जीन एक्सट्रैक्ट करेंगे, उस जीन को फिर हम आगे उसकी क्लोनिंग करेंगे और फिर उसको ट्रांसफ़र करेंगे. सो देयर आर द डिफरेंट मेथड्स. सो इसमें कौन कौन से जो पॉइंट्स आपको याद करने हैं, सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, कि हम रिकम्बिनेंट डीएनए को बनाएं, then the cloning of that recombinant DNA and then transfer of into the host. So that these 3 points we will discuss with the help of a diagram. So what are the steps in the rDNA technology? The biotechnology, that is the application based chapter. So in this chapter we will discuss some topics again and again because there is the interlinking of the different topics. So rDNA technology में हम finally करते क्या हैं? First is the construction of recombinant DNA. हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक recombinant DNA हम बनाएंगे. So how we can make the recombinant DNA? Suppose I have taken the DNA from the pancreas, और उस पैनक्रियाज के डीएनए से हमने फाइंड आउट कर लिया वो जीन, इंसुलिन मेकिंग जीन. उस जीन को हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ विच जो एक्सट्रैक्ट किया हमने डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो ये पार्ट है डीएनए का दैट इज़ ब्रोकन. एंड इन द बैक्टीरिया ऑल्सो, जो बैक्टीरिया का प्लाज्मिड हम लेंगे और उस प्लाज्मिड को भी हम कौन से एंजाइम से ट्रीट करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, जिससे वो ब्रेक हो जाएगा. ओके. सो अब हम इस डीएनए को, जो जीन जो है जिसके अंदर जीन प्रेजेंट है जो इंसुलिन बनाएगा फर्दर, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्लाज्मिड के अंदर. दैट इज़ नोन एज द प्लाज्मिड. इट इज़ द